Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we are going to discuss in this session 4 plays of Shakespeare, one tragicomedy, and apart from that we'll be discussing morphology. And then one student would like to share her insight about some literary work, so that will also be important. Okay, so we are going to start with Hamlet, and that is by Shakespeare, and one of the most important works by Shakespeare. ये उसने थर्ड फेज में लिखे. आई हैव सेंट यू द नोट्स ऑलरेडी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड दैट स्टेट्स कि जो इसका थर्ड टाइम पीरियड था राइटिंग आउट ऑफ 4, इन दैट ही वाज राइटिंग अबाउट tragedy and tragicomedies. So primarily his tragedies are very important. So we're discussing 3 of them. 2 are already discussed. So यहाँ पे basically first of all you could see the screen where a hand is holding a skull. So you just call a skull here that works like a character in this. Basically that is York's skull in that. और ये हेमलेट को मिलती है एक कब्रिस्तान में, और ये जो स्कल है that is basically a symbol of death or the ultimate destination of life. So Hamlet holding the skull represents duality of life and death. और ये जो है बेसिकली डेथ की एक पोर्ट्रेयल है which makes him think and contemplate again time and again. So let us go through the story. So these are the characters. So first of all you would be able to see King Hamlet in Prince Hamlet, and then on his left hand side on the corner under my logo, that is the ghost of King Hamlet, who is his father. And then ahead of him, that is Claudius, who is his uncle, and both Hamlet and Claudius were brothers. Claudius murdered Hamlet. Just across King Hamlet, there is Gertrude, who is mother to Hamlet, and also she is now wife of Claudius after the death of her former husband, King Hamlet. So she married her husband's brother. Then there is Polonius. So Polonius is also a character who is a major character, and he is father of Ophelia. Ophelia is right in the direction of Hamlet, whom he loves. And then you could see Laertes, who is her brother. And then there is Horatio with a skull. So Horatio is his philosopher and also his friend, Hamlet's friend. And there are 2 more characters, Rosencrantz and Guildenstern. So they are frenemies, friend-type enemies, and they are spying over Hamlet. So let's go through the story. एक dark wintry night का जो scene है, there we see के what happens is कि Elsinore जो castle है डेनमार्क में, ये उसकी setting है, और कुछ जो है वॉचमैन दे डिस्कवर अ घोस्ट, और वो फिर स्कॉलर जो है होरेशियो, जो कि हैमलेट का फ्रेंड भी है, वो उसको देखते तो वो बताता है कि ये तो हैमलेट के फादर जैसा, किंग हैमलेट जैसा. और किंग हैमलेट वो है जिसको उसके भाई क्लॉडियस ने मार दिया, और उसके बाद उसकी विडो यानी अपने भाई की विडो क्वीन गर्ट्रूड उससे शादी कर ली. तो इसके बाद होरेशियो कॉल्स हैमलेट, और उसके बाद हैमलेट जो है वो गोस्ट से बात करता है अपने फादर के, और उसके बाप की जो स्पिरिट है वो उसे बताती है कि आई एम मर्डर्ड बाय नन अदर देन माय ओन ब्रदर. और वो उसे ये भी कहता है कि तुमने इस चीज का रिवेंज लेना है. सो हैमलेट इज नाउ बेसिकली अवेंजिंग फॉर हिज फादर, और उस बंदे को जिसने इसकी माँ से शादी की, इसके बाप को मार दिया, और जो इसका हकीकी अंकल भी था. अब हैमलेट जो है, हैमलेट अपनी सारी चीजें भूल के, जिसमें ऑफिलिया की मोहब्बत है इसकी, जिसमें इसके और बड़े यानी ऑलरेडी जिस सिलसिलों में ये था, he forgot all of them and then he devoted himself for avenging for his father's death. लेकिन इसका हमार्शिया क्या ट्रेजिक फ्लॉ कि he is too contemplative and thoughtful. He's always thinking and delaying things. ये इसका हमार्शिया है जो इससे ले डूबता है. सो वो उसके एक गहरी सोच में जाता है, और ही फेन्स मैडनेस. ये पोर्ट्रे करता है जैसे कि ये पागल हो चुका है,
और क्लॉडियस और गर्टरूड बड़े परेशान होते हैं उसके इरेटिक बिहेवियर पे कि ये इसको क्या हो चुका है। सो वो रोजेनक्रांट्स और गिल्डेस्ट्रेन को उनकी ड्यूटी लगाते हैं दोनों की कि तुम इसको देखोगे, इस पे नजर रखोगे। अब पोलोनियस जो है वो जो कि ओफिलिया का फादर है एंड वाज लॉर्ड चैम्बरलेन, वो कहते हैं कि हैमलेट में भी उसकी बेटी की मोहब्बत में पागल हुआ हो। सो ओफिलिया की मोहब्बत में भी हैमलेट इस तरह हो गया हो। तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि यूं करेंगे कि हैमलेट की मुलाकात करवाएंगे ओफिलिया से, यानी जब इनकी मुलाकात होगी तो उस पर स्पाई करेंगे कि व्हाट हैपेंस। लेकिन जहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट सीन आता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। सो इन हैमलेट की बड़ी जबरदस्त सोलिलोक्वी है जिसमें बाद में ओफिलिया आती है और वो ओफिलिया से बड़ी नफरत का इजहार करता है एक तरह से, और उससे कहता है कि उससे ननरी में जाना चाहिए, और वो विश करता है कि मैरिजेस पे बैन लग जाना चाहिए। तो वो इस तरह की बातें करता है तो उन सबको यकीन हो जाता है कि ये वाकई ही पागल हो चुका है। मीनवाइल एक ट्रैवलिंग एक्टर्स का ग्रुप आता है एल्सिनोर में, और हैमलेट को एक चांस मिलता है अपने अंकल के गिल्ड को सामने लाने का। वो उन प्लेयर्स के साथ मिलके एक स्टेज करता है प्ले जिसका नाम वो रखता है माउस ट्रैप, यानी जिसमें माउस को पकड़ने के लिए कोई एक्टिविटी। So basically, this is a play within a play, a technique that had started before. So he uses this technique, and also he borrows this idea, play within a play, and also this revenge tragedy, which is this from Thomas Kyd's the Spanish tragedy. उससे इसने ये दोनों चीजें borrow की. So he owes him a lot. तो यहाँ पे क्या होता है, he stages a play, और उसमें ये होता है कि सीक्वेंसेस वही होते हैं इवेंट्स के जो कि रियलिटी में हुए, और जिसमें एक भाई दूसरे भाई को मार के तख्त ले लेता है। तो ये इस चीज को परफॉर्म करता है जस्ट टू सी कि इसका जो भाई है, इसका अंकल गिल्टी है या नहीं। सो इट हैपेंस सो कि जब मोमेंट आता है मर्डर का, तो क्लॉडियस जो है वो भाग जाता है वहां से, छोड़ देता है वो कमरा। So now Hamlet and Horatio, they agree that yes, he is guilty and that is all because of him. So Hamlet जो है वो क्लॉडियस को मारने के लिए जाता है उसके रूम में, but he finds him praying. अब यहाँ पे he could have easily killed him or everything could have settled smoothly, लेकिन क्या होता है कि वो कहता है कि ये प्रे कर रहा है, मैं इसे यहाँ पे मारूं तो ये सोचना शुरू हो जाता है बेसिकली, तो वो जन्नत में चला जाएगा सोल उसकी, तो मैं उसे इस मौके पे नहीं मारूंगा। सो देयर वाज अ चांस टू किल एंड टेक रिवेंज, बट ही डज नॉट अवेंज, और पेंडिंग कर देता है उस केस को, जो किसकी गलती होती है। पर क्लॉडियस जो है, ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हैमलेट एंड ही थिंक्स कि हैमलेट को काफी हद तक आइडिया हो चुका है कि यानी मैंने मारा इसके फादर को। सो वो उसके लिए क्या करता है कि उससे मैडनेस से या उसकी अपनी सेफ्टी यानी अपनी सेफ्टी के लिए वो कहता है हैमलेट को इंग्लैंड भेज देना चाहिए। हैमलेट गोज टू कन्फ्रंट हिज मदर, और उसके बेड चैम्बर में पोलिनियस छुपा होता है एक पर्दे के पीछे, टू स्पाई ऑन हैमलेट। So hearing a noise, Hamlet realizes that there is someone behind the tapestry. So he is now willing to kill, not knowing, or sorry, knowing this कि he may be Claudius. So stab कर देता है fabric के through, and then later on he knows कि this was Polonius, उसकी beloved Ophelia का father. अब इस crime के लिए he is dispatched to England. So Rosencrantz, Guildenstern इसके साथ जाते हैं, and they are having a letter for the king of England कि Hamlet is state criminal and he must be put to death. So Hamlet को वो लोग अपने साथ शिप में ले जाते हैं। अच्छा, अब फादर की डेथ के बाद ओफिलिया पागल हो जाती है, एंड लेटर ऑन शी ड्राउन्स इन द रिवर। सो पोलिनियस का बेटा लर्टिस जो कि फ्रांस में होता है, ही कम्स टू डेनमार्क इन अ रेज, और क्लॉडियस उसे कन्विंस कर देता है कि सब कुछ किया धरा हैमलेट का, एंड ही इज द ओनली क्रिमिनल एंड ही इज द ओनली अक्यूज्ड। होरेशियो और जो किंग हैं उनको लेटर मिलता है कि प्रिंस इज लाइक कमिंग बैक because they were attacked by the pirates and they switched their way and now they're not going to England, rather they're coming back. तो यहाँ तो उसका ये प्लान फेल हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो लेटिस को यूज करने की कोशिश करता है कि इसके जरिए मैं हैमलेट को मारूं। तो वो लेटिस को कहता है कि विल फेंस एंड यू विल फेंस विद हैमलेट एंड इनोसेंट स्पोर्ट। लेकिन क्लॉडियस जो है उसका प्लान ये होता है कि वो लेटिस की जो ब्लेड है
उसको पॉइजन कर देगा कि अगर खून निकला, हैमलेट को हिट हुआ, तो हैमलेट मर जाएगा। और एज अ बैकअप प्लान, एज अ प्लान बी, वो एक डिसाइड करता है कि गॉबलेट एक जाम के अंदर जहर डाल देता है कि अगर वहां से हैमलेट बचता है तो वो जहर को पी लेगा, जिससे उसकी डेथ अल्टीमेट है। सो व्हाट हैपेंस कि हैमलेट जो है वो पहला स्कोर करता है, पहले हिट करता है। सो हैमलेट जो है वो उसमें लेकिन उससे पहले एक और जो सीन है दैट इज इम्पोर्टेंट। हैमलेट जब वापस आता है इंग्लैंड से, तो उसमें ऑफेलिया का फ्यूनरल हो रहा होता है। सो उसको बड़ा दुख होता है इस चीज का, और वो लेट्रेस से उसकी मुंहमारी होती है। लेट्रेस को उस पर गुस्सा होता है, उससे इस पे गुस्सा होता है। सो वहां पे होरेशियो जो है कि ही इज नाउ श्योर कि समवन इज रेडी टू डाई, कोई ना कोई उस पे मरेगा। और ये होरेशियो यही होता है हेमलेट, जो कि एक इससे पहले सीन में कुछ सीन पहले ग्रेवयार्ड में जाता है, तो वहां पे उसे यॉरिक स्कल मिलती है। और ये स्कल जो है दैट इज बेसिकली रिमेम्बरेंस और कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जो उसे मौत की याद दिलाती है, जिसके ऊपर वो सिलिलॉक्विज भी हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले इस लिहाज से कि इसकी सिलिलॉक्विज बहुत मशहूर है। इसकी ओथेलो में यागो, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, जिसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं। खैर, स्वॉर्ड फाइट बिगिन होती है, हेमलेट पहला स्कोर करता है, और लेकिन जो गॉबलेट होता है उससे ड्रिंक पीने से इनकार कर देता है। गर्टरूड ना समझी में या उसमें ना पता होते हुए, शी ड्रिंक्स फ्रॉम इट और पॉइजन किल्स हर सॉफ्टली। लेटिस जो उसके बाद वूंड करता है हेमलेट को, और हेमलेट के अंदर पॉइजन चला जाता है, बट दैट डज नॉट किल हिम इमीडिएटली। सो वो उसी के ब्लेड से लेटिस को मार देता है। सो लेटिस मरने से पहले बता देता है कि व्हाट इज द प्लान एक्चुअली, व्हाट वाज गोइंग ऑन, और कि सब प्लान क्या चल रहा था। हैमलेट जो है फिर वो स्टैप करता है क्लॉडियस को उस पॉइजन सोर्ड से, और उससे मजबूर कर देता है उस गॉबलेट से बाकी सारी वाइन पीने के लिए। क्लॉडियस मर जाता है, और हैमलेट जो है उसके बाद अपना रिवेंज अचीव करने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। सो दैट इज टिपिकल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, दैट एवरीवन डाइज इन द एंड। सो हियर सेम थिंग हैपेंस। फिर नॉर्वेजियन प्रिंस आता है, और वो जो कि डेनमार्क पे एक अटैक करने के लिए आया है, वो अपने एम्बेसडर्स के साथ आता है, और उसमें लाइक फोर्टिन ब्रास जो है वो जब उसे सारी सिचुएशन का पता लगता है, तो वो हैमलेट को खराज अकीदत पेश करता है और उसको अच्छा बैरियल देता है। सो हियर द प्ले एंड्स। ये उसके कुछ थीम्स हैं, जो कि कुछ थीम्स, कुछ सिंबल्स, लाइक ए गोस्ट कम्स, और उसमें फ्लावर्स जो हैं वो भी सिंबल हैं सॉफ्टनेस का। स्कल इज फॉर डेथ, गोस्ट इज फॉर रिमेम्बरेंस और लाइक रिवेंज। ग्रेवयार्ड मौत का सिंबल है, माउस ट्रैप एक प्लान का सिंबल है, फेंसिंग सोर्ड डिसीट का सिंबल है। हैमलेट का जो कॉस्ट्यूम है वो उसके एक अपरेंट बिहेवियर का सिंबल है, और पॉइजन जो है डेथ इज अगेन फॉर डिसीट, धोखा या डेथ, इनके लिए स्टैंड करता है। I'll be sending you the files in which you can see these themes: madness, revenge, mortality, religion, art, and culture, and many more. Then you could also be able to read Hamlet's strength and weaknesses. अब इसमें एक और जो चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड, तो फ्राइड उसकी थेरीज के हिसाब से देखा जाए तो हेमलेट जो है he has somewhat Oedipus complex in him. So उससे बाप के मरने से ज्यादा इस चीज का ज्यादा दुख है कि उसकी माँ ने उसके अंकल से शादी कर ली। सो समवट जो है उसकी वो एक उसमें इंक्लूडेड है Oedipus complex. So ये इसमें basically all the material that you can read later on. Claudius जो है ये उसका कैरेक्टर है, जो कि इस प्ले का एंटागनिस्ट है। Protagonist is Hamlet himself. Gertrude एक shallow और weak character है, एक weak woman है जो कि morally भी weak है, and she's mother of Hamlet. Laertes एक like young man who's Polonius son, और sister उसकी है Ophelia. Ophelia is Polonius daughter, एक young woman, she's sweet, she's innocent. वो अपने भाई और बाप की बात मानती है, और उसमें लाइक उस
बेचारी शिकार होती है इस पूरे में उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लवर की उस मैडनेस का, फिर अपने बाप के मरने का, और उसके बाद में ये खुद पागल हो जाती है. सो शी सफर्स अ लॉट. होरेशियो जो उसका क्लोज फ्रेंड है और उसके करीब रहता है, इज ऑलवेज लॉयल, ऑलवेज हेल्पफुल. ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट like quotations. And someone asked what is meant by to be or not to be. So to be or not to be, that is the question. So that is basically a famous saying of Hamlet, जिसमें Hamlet एक वो यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म टाइप की एक गुफ्तगू कर है कि यानी what is our existence and what if we have not existed. तो to be or not to be, होना या ना होना. So he is questioning the existence, he is questioning so many things all around, how the fate is knitting everything around him. So these are soliloquies of Hamlet, what he thinks. So I'll be sending these to you. You can read them later on के उसमें कौन-कौन सी soliloquies थी जो उसने importantly present की. So this was from Hamlet by Shakespeare. So now let's discuss Othello. I've already told in previous class that if you wish to see the representation of these in some movies, so you could see Maqbool for Macbeth, Indian movie, and then you can see Heather for Hamlet and Om Kara for Othello. So these movies are very good, and they're they will tell you a lot about the real incident, what happened, like the play basically. Okay, so you could see the green color around, and it says, "Oh, beware, my lord, of jealousy. It is a green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on." So this is Othello who has placed a hand on the wall. So Othello is a Moor, a Spanish Moor, who is black in his skin color. So एक racism इसका बड़ा एक important theme है. This is Desdemona, his wife, who is sitting on a bed, and that is her last time she is breathing, because after that she is killed. और ये जो green color है, green color basically reflects jealousy. So green color literature में jealousy का एक color समझा जाता है. So this is act-wise summary of Othello. Act ये जो important चीजें हैं, though we are going to discuss, but when you'll be getting them, you can read these things afterwards. What happens in Act 1 from 1 to 3 scenes. Iago Rodrigo blame करते हैं Othello को कि Desdemona को चार्म कर लिया, और उसके फादर को बताते हैं, और साइप्रस का अटैक होता है. फिर साइप्रस में स्टॉर्म आता है, टर्किश फ्लीट वो तबाह हो जाता है. सेलिब्रेशंस में रोड्रिगो और कैसियो का क्वारल होता है. कैसियो को हटा दिया जाता है. कैसियो डेस्टिमोना की आपस में जो फ्रैंकनेस है उसको यूज करता है इयागो, और इयागो फिर प्लांट करता है जेलसी के सीड. एमिलिया के जरिए हैंडकरचीफ लेके उससे प्लांट किया जाता है, और इन द एंड जो है, लाइक टिपिकल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, एवरीवन डाइज. So this is conflict, exposition, conflict, rising action, climax, falling action, and denouement, which means ending. So you can have these pictures with you afterwards. PDFs will be sent to you definitely. So first of all, Othello. So Othello जो है, that begins in a street in Venice. अब ओथेलो जो स्टार्ट होता है प्ले, उससे पहले कुछ इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. और वो कौन से इवेंट्स हैं? एक इवेंट तो ये है कि ओथेलो ने डेस्टिमोना से शादी कर ली. अब डेस्टिमोना कौन है? डेस्टिमोना एक लोकल एक अरिस्टोक्रेट, एक लॉर्ड, बर्नबास उसकी डॉटर है, और वो उस जगह से अपने घर से चली गई है इस वक्त, लेकिन उसके बाप को इस चीज का नहीं पता. खैर, और फिर माइकल कैसियो जो कि एक सोल्जर था, एंड ही वांटेड प्रमोशन, सो उसको प्रमोट कर दिया गया, और इयागो को उसकी जगह प्रमोशन नहीं मिली. रोड्रिगो एक और कैरेक्टर है जो कि शादी करना चाहता था डेस्टिमोना से, जो कि ऑलरेडी ओथेलो से शादी कर चुकी थी. अब इस टाइम पे ओथेलो
सॉरी, इयागो एंड रोड्रिगो, ये दोनों हर्ट हैं और दोनों ओथेलो के डसे हुए हैं और इन्हें उस पर गुस्सा है क्योंकि रोड्रिगो की मोहब्बत थी डेस्टिमोना जिसने ओथेलो से शादी कर ली। इयागो आर्मी में प्रमोशन चाहता था, जो कि प्रमोशन उसकी जगह एक नोवाइस यानी एक नए बंदे जो कि इनएक्सपीरियंस था, माइकल कैसियो, उसको दे दी जाती है। तो दोनों के दिल में ग्रजेस हैं। सो ये दोनों जो हैं पहले एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं स्टार्ट में, और ओथेलो एक बात उससे कहता है कि उसे कन्विंस करता है कि ये मत समझो कि मैं, सॉरी, यागो उसे कहता है कि ये मत समझो कि मैं ओथेलो के साथ हूँ, तो मैं उसके साथ सिंसियर हूँ, मैं भी उससे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुम करते हो। खैर, ये एक ब्रॉल, एक किस्म के शोर शराबे से ब्रेबेंशियो को जिगा देते हैं। सॉरी, मैंने पहले बर्नबास कहा था, दैट इज ब्रेबेंशियो जिसकी डॉटर होती है वो। सो ब्रेबेंशियो उठता है और उसके बाद वो इयागो थोड़ा सा साइड पे होता है क्योंकि ही डज नॉट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड और सीन, क्योंकि वो ओथेलो का भी एक तरह से अपेरेंटली हमदर्द है। तो वो रोड्रिगो को आगे करता है, तो बहुत गुस्सा आता है ब्रेबेंशियो को रोड्रिगो को देख के, बिकॉज ही नोज कि उसकी बेटी का हाथ मांगता था। तो उसे डांटता है, और लेकिन उसको जवाब में ये कहा जाता है कि तुम पहले अपने घर में देखो कि क्या तुम्हारी बेटी घर में है भी कि नहीं। सो ब्रेबेंशियो जो है वो अपने घर में देखता है, तो वहां पे वो नहीं होती, और उसको बताया जाता है कि वो ओथेलो के साथ भाग गई है, उससे शादी कर लिया उसने। खैर, वहां से इयागो रोड्रिगो को छोड़ के वापस आ जाता है ओथेलो के पास, और वहां पे कैसियो, माइकल कैसियो आता है और बताता है कि ड्यूक ने बुलाया उसे फौरन, क्योंकि टर्किश फ्लीट ने इन्वेजन की है साइप्रस में, कब्रस में, वो वहां वहां की तरफ आ रहा है, जो कि इनका इलाका है, दे हैव टू प्रोटेक्ट दैट। ब्रेबेंशियो जो है वो रोड्रिगो और बाकी लोगों के साथ वहीं पे आ जाता है, और फिर ये ड्यूक के पास जाते हैं, और ड्यूक के सामने वो इसको अलेज करता है कि इसने मैजिक के जरिए मेरी बेटी को फंसाया, क्योंकि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, ये काला है, मूर है, तो इसके साथ तो उसकी मोहब्बत हो ही नहीं सकती, ये डेफिनेटली कोई मैजिकल आर्ट्स इसने यूज की। उसका प्लान बैकफायर कर देता है। ड्यूक जो है और सेनेट, वो ओथेलो के बड़े सिंपैथेटिक होते हैं बिकॉज ही इज गुड जनरल। सो उसे कहते हैं अपनी सफाई में कुछ बोलो। सो वो उसे बताता है कि किस तरह मैं इनके घर जाता था और किस तरह मैं इसके वालिद को स्टोरियां सुनाता था, अपनी जंगों की, अपने पुरानी दास्तानें, और ये बड़े शौक से सुनता था। तो इसकी बेटी हमें सर्व कर रही होती थी, कभी नाश्ता, खाना, चाय पानी, वो भी बड़े शौक से हमारी कहानियों को सुन रही होती थी। फिर कई दफा ऐसा भी होता था कि बाप बीच में नहीं होता था, लेकिन मैं वो कहानियां बेटी को सुना रहा होता था। तो वो सुनते सुनते उसे मुझसे अटैचमेंट हो गई, मोहब्बत हो गई, और उसी मोहब्बत के रिजल्ट में हमने शादी कर ली। तो अगर मैंने कोई मैजिक यूज किया तो वो बातों का मैजिक हो सकता है, वरना मैंने कोई ऐसी आर्ट्स यूज नहीं की। तो कहता है अगर पूछना है तो उसकी बेटी से पूछ लो। खैर, उसकी बेटी आती है और वो आके बताती है कि इससे शादी मैंने अपनी होशो हवास में की, अपनी मर्जी से की, मुझ पे कोई दबाव नहीं था। खैर, अब यहाँ पे ब्रेबेंशियो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सो ड्यूक जो है वो इस मामले को निपटा देता है, और ओथेलो को कहता है कि तुम्हें साइप्रस जाना पड़ेगा। मीनवाइल ब्रेबेंशियो मिलता है ओथेलो को बाहर, और वो कहता है, बड़े इंपॉर्टेंट लाइंस है वो, कि अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहता है कि शी हैज डिसीव्ड हर, यानी कहता है लुक इनटू हर आईज मोर इफ यू हैव आईज टू सी, शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी, कि अगर तुम्हें देखने वाली आंख है तो उसको देखो गौर से, कि जो अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। खैर, ओथेलो इग्नोर्स दिस थिंग। उसके बाद वो साइप्रस जाते हैं, वापस आते हैं। सो इसमें इयागो और उसमें माइकल कैसियो, डेस्टिमोना, इमिलिया, इमिलिया जो है वो इयागो की वाइफ है, इनके कन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है, और वो कन्वर्सेशन इस बात का इजहार करती है कि इयागो इज वेरी मच हेटफुल टुवर्ड्स वुमेन, स्पेशली डेस्टिमोना, और अपनी वाइफ को भी उसमें शामिल करता है वो। तो बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है उनके लिए। और फिर वहां पे जब एक, चूंकि माइकल कैसियो और डेस्टिमोना ये दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, इनके दरमियान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, तो वो उसके हाथ को टच करता है, यानी हंसते हुए ताली मारते हैं दूसरे के हाथ पे, क्लैप करते हैं। तो जो है यागो इस चीज को निट करना शुरू कर देता है, इस चीज को प्लॉट करता है कि अगर ये इतने फ्रैंक हैं तो इनकी फ्रैंकनेस को ही यूज किया जाएगा। सो एक रोड्रिगो के साथ गुफ्तगू में वो रोड्रिगो को कहता है कि
पुट मनी इन दाई पर्स। और ये बात वो अक्सर रिपीट करता है एक ही गुफ्तगू में कि तैयार हो, तुम बस अपनी तैयारी पूरी करो, क्योंकि ये जो है लाइक ओथेलो, ये एक ज्यादा अरसा इसको इसके साथ वो प्यार नहीं रख सकता। जब इसको अकल ठिकाने आएगी तो ये देख लेगी कि ये उसके काबिल नहीं है, यानी ओथेलो उसके काबिल नहीं है, और वो डेफिनेटली उसको छोड़ के चली जाएगी। तो मे बी वो तुम्हारे साथ एक फ्रेश स्टार्ट करे। तो रोड्रिगो को कहता है कि तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। खैर, इसमें फिर ये होता है कि अब जब ओथेलो वहां से वापस आता है तो वहां पे अब उस इलाके की सेफ्टी की जरूरत होती है, और वहां पे वो माइकल कैसियो की ड्यूटी लगाता है कि वो उस इलाके को, यानी खास तौर पे सी शोर्स को कंट्रोल करे। तो वहां पे जो रोड्रिगो है बेसिकली, उसको इयागो एक प्लान बताता है कि तुमने किसी तरह माइकल कैसियो को गुस्से में लेके आना है और उससे डिस्ग्रेस कराना है। खैर, वो कैसे होगा कि ये उसको यागो एक सिलिलॉक्वी में एक्सप्लेन करता है ऑडियंस को कि ये जो है कैसियो कुड बी द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप टू रूइन ओथेलो। सो वो कहता है कि इसको ड्रंक किया जाएगा और उसके बाद फाइट होगी और उसके बाद कैसियो को शायद हटा दिया जाए। सो ये होता है कि वाकई उसको शराब पिलाई जाती है, उसके बाद रोड्रिगो उसको छेड़ता है, वो उसके पीछे भागता है, लड़ाई होती है। मोन्टानो जो कि गवर्नर है वो उनको रोकने की कोशिश करता है, ये उसको भी फेंटी लगा देता है बीच में, कैसियो उस नशे में। तो खैर, इयागो जो है वो रोड्रिगो को भेजता है कि शहर में खबर दे दो कि सिविल वॉर हो गई है, इस तरह कोई मुसीबत पड़ गई, रोला हो गया। तो अलार्म से ओथेलो जाग जाता है, और वो उसके बाद जब उसे पता लगता है तो उस यानी वो अपने इस इयागो को कहता है कि तुम बयान करो। अब इयागो ऊपर से ओथेलो के सामने ऐसे शो कर रहा होता है कि वो नहीं बताना चाह रहा असल सच, और वो कैसियो के सामने भी इस तरह यानी पोर्ट्रे कर रहा होता है कि वो उसका बड़ा क्लोज फ्रेंड है, यानी उसी तरह के चलो जी गलती हो गई से मटी पाओ, हाँ उन्हें बंदा तक उड़ देता है लेकिन छड़ो पर है। यानी वो उसको तैश भी दिला रहा होता है, अपेरेंटली कैसियो को प्रोटेक्ट भी करे, और वो सही बात भी बता रहा है। ओथेलो को इस बात पे गुस्सा आता है और वो माइकल कैसियो को उसके ओहदे से हटा देता है। अब पूरे प्ले में, रेस्ट ऑफ द प्ले, वो उसे ही कीप सेइंग हिम ऑनेस्ट इयागो व्हिच इज द हाइट ऑफ आयरनी, हालांकि ही इज नॉट एट ऑल ऑनेस्ट विद हिम। खैर, कैसियो बड़ा एक्सट्रीमली डिप्रेस होता है, तो इयागो उसे मशवरा देता है, क्योंकि कैसियो के नजदीक इयागो जो है वो बहुत ज्यादा सिंसियर है उससे। सो उसे मशवरा देता है कि तुम जाओ और डेस्टिमोना से, चूंकि तुम्हारी अच्छी हेलो हाय है, उसके जरिए तुम जाके इन उससे माफी मांगो, या शायद वो तुम्हारी सिफारिश करे तो तुम्हें री इंस्टेट कर लिया जाए। और उसका प्लान ये होता है कि इन दोनों को लवर्स डिक्लेयर करना है। कैसी अपनी तरफ से ट्राई करता है, लेकिन ओथेलो उसकी बातें नहीं मानता। फिर वो प्लान करता है डेस्टिमोना से मिलने का, और वो मिलने के लिए जाता है। मीनवाइल ओथेलो, इयागो और एक जेंटलमैन ये सिटी को देखने जाते हैं कि कैसी है हिफाजत वगैरह, इंतजाम कैसा है, कोई हमले का खतरा तो नहीं। डेस्टिमोना बड़ी सिंपैथेटिक होती है कैसियो के हवाले से, और वो उसे प्रॉमिस करती है कि शी विल डू एनीथिंग व्हाट शी कैन, और ताकि ओथेलो उसको माफ कर दे कैसियो को। कैसियो जब जाने लगते हैं तो ओथेलो और इयागो जो है वो वापस आ जाते हैं। अब कैसियो ओथेलो से मिले बगैर निकल जाता है क्योंकि डरा होता है। अब ओथेलो इंक्वायर करता है कि ये क्यों आया इस तरह। इयागो उस चीज पे यानी कहता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह के, देखो ये इयागो तो नहीं है। कह रहा हाँ, लग तो इयागो ही रहा है, चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, बताओ सही, ये इयागो यहाँ पे क्या कर रहा था? वैसे ही आया होगा, वैसे टाइम तो नहीं आंदा। अब वो ये चीजें ओथेलो के अंदर थोड़ा सा जो है वो डेवलप कर रही हैं कि यार ये क्यों इस तरह मेरे घर से निकला और मुझे मिले बगैर चला गया, देयर इज समथिंग फिशी। तो खैर वो आता है और वो अपनी वाइफ से इंक्वायर करता है। उसके जवाब में जो है उसकी वाइफ बजाय इसके वो उसको उस सिफारिश पे आ जाती है उसकी बात मानने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या नेट बुना जा रहा है उसके अगेंस्ट। ओथेलो जो है वो अपसेट हो जाता है, मूडी हो जाता है। इयागो अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ता रहता है, और उसके माइंड में ऐसा ऐसा ये प्लांट करता है कि इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। सो डेस्डिमोना जो है वो बार बार अपनी तरफ से कैसियो को रीइंस्टेट करने की बातें कहती है, जिसकी वजह से मजीद उसका माइंड खराब होता है
कि ये वाकई इनके दरमियान कोई अफेयर है, तो ये इतना ज्यादा उसके करीब आ रही है। सो उसको लगता है कि ये मेरी वाइफ वाकई मुझसे अनफेथफुल हो चुकी है, यानी वो जेलसी, वो जो ग्रीन आई मॉन्स्टर उसने अटैक कर दिया ऑलरेडी उसके ऊपर, ओथेलो के ऊपर, थ्रू इयागो। अब ये जो प्ले है, दिस इज नेम्ड एज ओथेलो, but this play is more about Iago, because he is the super villain, he is the super person of this story, he is the actual person who is weaving everything, he is the person who is planning everything, और बाकी सारे characters उसके plan के according चल रहे हैं। Like he is the backbone, he is the godfather, he is the mastermind जो कि इस पूरे नेट को बुन रहा है। अच्छा जी, आगे डेस्टिमोना बुलाती है ओथेलो को सफर पे, और वो देखती है कि वो सही फील नहीं कर रहा, तो वो उसके सर के गिर्द वो अपना हैंड कर्चीफ जो है वो बांधती है, लेकिन ओथेलो का वो इतना बड़ा अक्षियों वाला सर, वो छोटा सा हैंड कर्चीफ उसका वो पूरा नहीं आता। अब ये जो हैंड कर्चीफ है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये वो हैंड कर्चीफ है जो कि ओथेलो को उसकी मदर ने दिया और उसने फिर अपनी वाइफ को दिया, एंड दिस इज सिंबल ऑफ फाइडेलिटी। ये औरत की हस्बैंड के साथ फर्माबरदारी की एक अलामत है। अब ये हैंड कर्चीफ जो है ये वहां से उसके हाथ से गिर जाता है और एमिलिया उसे उठा लेती है, और वो बताती है कि इयागो को हमेशा ही वांटेड टू स्टील दिस, तो मैं अपने हस्बैंड को खुश करूंगी ये एक हैंड कर्चीफ देके, नॉट नोइंग के व्हाई डज ही वांट दिस। इयागो बड़ा खुश होता है जब उसे हैंड कर्चीफ मिलता है, और वो उससे क्या करता है, वो उसे कैसियो के रूम में प्लांट कर देता है ताकि ये पता लगे कि डेस्टिमोना इसके साथ उसका अफेयर है, और डेस्टिमोना ने ये हैंड कर्चीफ उसको दिया। सो ओथेलो जो है वो अपनी उसको ये बताता है कि मैंने देखा कैसियो को, इयागो बताता है कि वो अपनी दाढ़ी को साफ कर रहा था उस हैंड कर्चीफ से। अब इयागो को ओथेलो को और गुस्सा आ जाता है, वो अपनी वाइफ के पास आता है, चिल्लाता है वो हैंड कर्चीफ कहाँ है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसके पास नहीं है। वो अपनी बात चेंज करके फिर कैसियो वाला मामला छेड़ती है, और इस पे इसको और गुस्सा आता है। खैर वो कैसियो जो है वो बाद में आता है, और वो देख रहा होता है कि हैंड कर्चीफ उसके घर में, उसके कमरे में कहाँ से आया। सो बियांका उसकी मिस्ट्रेस, एक प्रोस्टिट्यूट आती है, और वो उसे कहता है कि इस हैंड कर्चीफ की एक एम्ब्रॉयडर्ड कॉपी बनाए वो। अच्छा, ये इयागो की जो एक प्लानिंग है उसके थ्रू ओथेलो जो है इतना ज्यादा जेलस हो जाता है कि उसे एक मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, और वो मीनवाइल कैसियो आता है और इयागो उसे बताता है कि कुछ बातें करनी है, और ओथेलो को वो बताता है कि मैं इससे बात करूंगा और तुम खुद सुन लोगे इसके मुंह से कि व्हाट डज ही से अबाउट डेस्टिमोना, और उससे बियांका की बातें शुरू कर देता है, उसकी मिस्ट्रेस की, और ओथेलो को ये लगता है कि ये अफेयर डेस्टिमोना के साथ है और वो उसकी बातें कर रहा है। खैर इस सब के अंदर लाइक बियांका एंटर होती है, उसके पास वो हैंड कर्चीफ होता है, और वो उससे कहती है कि ये तुम किसी और वुमेन की मोहब्बत का सिंबल ले आए हो। बहरहाल ये इसमें ही इज कन्विंस्ड, ओथेलो इज कन्विंस्ड कि ये सब कुछ जो है ये वाकई सही है। अच्छा, दैट नाइट ओथेलो जो है वो अपनी वाइफ को होर होने का, प्रोस्टिट्यूट होने का इल्जाम लगाता है, और वो प्रोटेस्ट करती है तो उसे इग्नोर करते हुए आगे चला जाता है। एमिलिया कहती भी है कि इसने कुछ नहीं किया। इयागो जो है ही एश्योर्स डेस्टिमोना के ओथेलो सिंपल स्टेट के मामलात पे गुस्से में है, बाद में वो ठीक हो जाएगा। एंड देन उसी रात को ओथेलो ओमिनसली बड़े एक अजीब से अंदाज में डेस्टिमोना को कहता है कि जाके बेडरूम में मेरा वेट करो, और एमिलिया अपनी मुलाजमा को वहां से भगा देता है। मीनवाइल इयागो जो है वो प्लान करता है रोड्रिगो के साथ कि ये मिलके माइकल कैसियो को कत्ल कर देंगे, और इससे इनका रास्ता साफ हो जाएगा। इयागो जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है रोड्रिगो को कैसियो पे हमला करना है। वो करता है हमला, लेकिन कैसियो बाय चांस बच जाता है, और जब ओथेलो कैसियो की चीख सुनता है तो उसे लगता है कि इयागो ने कैसियो को मार दिया इसके कहने पे। और मीनवाइल यहाँ पे वो अपने रूम में आता है, और रूम में वहां पे डेस्डिमोना जो बेड पे है ये उसका गला दबा देता है, उसका सांस रोक के उसको मार देता है। एमिलिया एंटर होती है इस खबर से कि रोड्रिगो मर चुका है, और ओथेलो जो है वो पूछते कि कैसी हो, तो वो उसे बताती है कि वो जिंदा है। और उसके बाद लाइक
लाइक आफ्टर क्राइंग आउट दैट शी हैज बीन मर्डर्ड, डेस्टिमोना यानी डेस्टिमोना को मार दिया, उसमें स्टोरी चेंज होती है और उसमें बताती है कि उसने शी हैज कमिटेड सुसाइड, वो उसको ये कहता है। ओथेलो जो है उसमें यानी इसको डिक्लेयर करता है कि दिस वाज नॉट सुसाइड, रियली आई किल्ड हर फॉर हर अनफाइडेलिटी। और इसमें फिर एमिलिया रोना शुरू हो जाती है और वो बताती है कि ये सारा किया धरा ओथेलो का है। हैंडकरचीफ से लेके एंड तक बाकी के जो सीन है वो सारे डिक्लेयर कर देती है। यागो को पकड़ के लाया जाता है और यागो जो है ओथेलो उसे मारना चाहता है बट ही इज बेयर हैंडेड, नहीं मार सकता। और वहां पे जो यागो है वो अपनी वाइफ को कत्ल करके वहां से निकल जाता है। मीनवाइल आफ्टरवर्ड्स ही इज अरेस्टेड। लेकिन जो है ओथेलो वो बहुत गिल्टी होता है, बहुत सोरो फील करता है और फिर एक सोर्ड जो उसने छुपाई होती है उससे अपने आप को मार देता है। और आखिर में जो all the people are dead, so Michael Cassio is given all the authority, so he deals with the state affairs. So, themes हैं racial prejudice, manipulation, the incompatibility of military heroism and love, danger of isolation, jealousy and appearance versus reality. So ये इसके important themes हैं। ये और भी बेशुमार themes हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। They will surely be sent to you with the files. ये इसकी important lines हैं जो कि spoken by either Othello or Iago. So this was Othello by William Shakespeare. Now Shakespeare के जिस वैसे तो बहुत सारे plays हैं but we'll be going through. Yes, handkerchief was embroidered. Like there was strawberries were embroidered on a handkerchief. ये जो है एक prophetess से मिलता है इसकी माँ को और ये बड़ा important एक MCQ है उसके हवाले से। Okay जी, now going to the next one which is King Lear. King Lear एक tragic play है, one of the important tragedies by Shakespeare. So King Lear में हम क्या देखते हैं कि an aged king whose name is Lear, उसकी 3 बेटी हैं एंड बेसिकली इसका जो साइनॉप्सिस है वो ये कि लेयर अपनी किंगडम को डिवाइड करता है 2 डॉटर्स में, जो उससे फ्लैटरी करती हैं, जो नहीं करती, जो इतना ज़्यादा चरब जुबान नहीं होती, उसको निकाल देता है और फिर इसकी बेटियां इसको रिजेक्ट कर देती हैं। लेयर पागल हो जाता है, उसकी बैनिश डॉटर वापस आती है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं जीत पाती और वो सारी बेटियां इसकी मर जाती हैं एंड में लेयर भी मर जाता है। सो टिपिकल Shakespearean tragedy, everyone dies in the end. So let's see the story act by act. So act 1. So King Lear जो है ये शुरू होता है Earl of Gloucester. So the word is Gloucester, जिसका Leicester जो कि पढ़ने में Leicester है, ये पढ़ने में Gloucester है, but that is Gloucester. So King Lear जो play है वो Earl of Gloucester से शुरू होता है, जो कि अपने illegitimate son का introduction करा रहा होता है Earl of Kent से, जो कि एक बड़ा ओहदेदार है वहां का। तो उसका जो इलेजिटिमेट सन है दैट इज एडमंड। मीनवाइल लेयर जो किंग है ब्रिटेन का, वो अपने महल में आता है, बूढ़ा हो चुका है और उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी किंगडम को अपनी 3 बेटियों में डिवाइड करूंगा। तो वो कहता है कि देखेंगे कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है, उस हवाले से डिवीजन होगी। तो बड़ी दोनों बेटियां जो हैं, जिसमें गोनरेल और रेगन, ये बड़ी बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलती हैं अपनी मोहब्बत का। और जो छोटी बेटी होती है सबसे, वो उसके मुकाबले में या बाकियों के मुकाबले में इस हद तक, जिसका नाम कोर्डेलिया है बेसिकली, कोर्डेलिया इस हद तक झूठ नहीं बोलती। वो कहती है ठीक है उतना प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को बाप से करना चाहिए, और उसके पास वर्ड्स नहीं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, हालांकि शी रियली लव्स हिम। तो वो उसे इसी बात पे गुस्सा होता है और उसे बैनिश कर देता है अपने सिटी से, अपने कंट्री से। तो बेचारी फ्रांस जाने पे मजबूर हो जाती है। तो लेयर जो है उसे डिसाउंड कर देता है और उसके बाद अर्ल ऑफ कैंट, जिससे शुरू में जो ग्लाउस्टर जो है लॉर्ड अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर बातें कर रहा होता है,
वो जब साइड लेता है कोर्डेलिया की तो उसको भी वो वहां से निकाल देता है। अच्छा, इसके बाद जो है स्टेट दो लोगों में डिवाइड हो जाती है, दोनों बेटियों में। कोर्डेलिया का जो पहले उसका जो मंगेतर था वो उसको छोड़ देता है क्योंकि अब वो किंग की बेटी नहीं रही। तो किंग ऑफ फ्रांस उसको वैल्यू देता है कोर्डेलिया को और उससे शादी कर लेता है, उसको इज्जत देके अपनी बीवी बना लेता है। लेयर जो है उसकी किंगडम अब गोनरिल और रेगन दोनों बेटियों के पास है, और उनके जो हस्बैंड्स हैं यानी ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड कॉर्नवॉल उनके पास। लेयर जो है उसका प्लान ये होता है कि वो इन दोनों बेटियों के पास जाके रहेगा, क्योंकि हुकूमत और स्टेट उसने बांट दी उन दोनों में। तो बाकी टाइम ये कभी एक के पास कभी दूसरे के पास इस तरह अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा। मीनवाइल लॉर्ड जो अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर है उसका बेटा एडमंड, वो राइटफुल सन बनना चाहता है ग्लाउस्टर का। तो वो एक ट्रिक करता है कि फादर को कन्विंस कर देता है कि उसका जो लेजिटिमेट यानी जो जायज बेटा है एडगर, वो कहता है वो उसकी लाइफ के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है। तो इस चीज को देखते हुए एडगर भाग जाता है वहां से कि मेरी जान को खतरा है, और एक भिखारी का रूप धार लेता है। एडमंड जो है वो गोनरिल यानी लेयर की बेटी को कोर्ट करना शुरू कर देता है, उसके साथ फ्लर्ट और मोहब्बत करना शुरू कर देता है। और गोनरिल जो है वो लेयर और उसके साथियों के बिहेवियर की वजह से, उसके गार्ड्स के बिहेवियर की वजह से बड़ी परेशान होती है, और उसे बाप का वहां पे आना पसंद नहीं होता, तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज करती है अपने बाप। मीनवाइल कैंट जो कि एग्जाइल में होता है वो डिस्गाइज करके वापस आता है और दोबारा वहीं पे नौकरी कर लेता है भेस बदल के। कैंट जो है वो लेयर के साथ होता है जब उसके ऊपर उसकी बेटी एक तरह से उसे ताने मार रही होती है, तो वो गोनरिल को कर्स करके वहां से जाता है रेगन के पास। रेगन भी उसको गुस्से में घर से निकाल देती है क्योंकि वो नहीं रखना चाह रही उसे अपने साथ। अब उसके वो होता है और उसके साथ उसका एक फ्रेंड यानी एक मुलाजिम जिसका नाम फूल है। अब फूल बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, नाम का ये फूल है, लेकिन ही गिव्स वेरी गुड सजेशंस। वो उसको अच्छे मशवरे देता है, रोकता है उसे गलत काम से। लेकिन सिंस उसका नाम फूल है और वो एक मुलाजिम है तो उसकी बात मानी नहीं जाती, हालांकि वो बिल्कुल सही बातें करता है। दिस इज जस्ट लाइक जो हेक्टर और पेरिस की सिस्टर थी जो कि अपोलो की प्रीस्टेस बन गई, उसके ऊपर भी यही था कि वो हमेशा सच बोलेगी, लेकिन कर्ज था अपोलो का कि वो हमेशा प्रोफेसी करेगी सच्ची बातें, लेकिन उसकी बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही होता है कि वो बहुत सारी बातें करती है अपने भाई पेरिस के पैदा होने पे, उस जो बर्बादी लाएगा, ट्रॉय के तबाह होने की, फिर अपने मरने की, एगमेम्नॉन के मरने की, लेकिन कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो सेम केसेस में कि फूल की कोई बातें मानता नहीं है, हालांकि वो सिर्फ नाम का फूल है। एक्ट 3 में क्या होता है कि डॉटर्स से परेशान होके और डीपली वो हार्ट ब्रोकन होके लेयर पागल हो जाता है और एक स्ट्रॉम की जद में आ जाता है, और फिर वो एक हीथ में आते हैं जहाँ पे ग्लाउस्टर उनको शेल्टर देता है, और वो फिर ड्यूक जो कैंट है वो आता है, वो इनकी हेल्प करता है। और मीनवाइल कोर्डेलिया आ चुकी है डोवर की बंदरगाह पे फ्रांस से, और वो हमला करने आई है अपने बाप को बचाने के लिए, अपनी सिस्टर्स से लड़ने के लिए। एडमंड जो है वो एक तरह से मैसेंजर एम्प्लॉय हो चुका है दोनों सिस्टर्स के बीच में, और उसने दोनों सिस्टर्स फंसा ली, यानी इनका इसका दोनों के साथ अफेयर हो गया। तो वो आ, उन दोनों को यानी वो कॉर्नवॉल को कहता है कि ग्लाउस्टर यानी जो उसका फादर है वो एक दुश्मन है स्टेट का, वो फ्रांस की हेल्प कर रहा है, तो उसको रेबल समझ के जो कॉर्नवेल और रेगन ये उसकी आंखें निकलवा देती हैं, उसे ब्लाइंड कर देती हैं। यानी एडमंड जिसका नाजायज बच्चा होता है वो अपने बाप को इस तरह ही यानी उसकी आंखें निकलवा के उसे बेदखल कर देता है। आगे क्या होता है जी कि इस ब्लाइंडिंग एक्ट के बाद जो एक सर्वेंट है वो कॉर्नवॉल को मार देता है, लेकिन रेगन जो है वो एडमंड की हेल्प से रूल करती रहती है। देन अगेन स्टॉर्म आता है। अब ये स्टॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे प्लेज में, हैमलेट में है, मैकबेथ में है, इस लेयर में है, टेम्पेस्ट में है। सो स्टॉर्म एक्ट्स लाइक अ कैरेक्टर इन शेक्सपियरियन प्लेस। नेचर का बड़ा रोल है।
तो बहरहाल ये जो किंग है वो एक तकरीबन इंसेन हो चुका होता है। एडगर जो है उसे वहां पे भिखारी जब बना होता है, उसे अपना बाप मिलता है तो वो उसे बचाता है गिरने से। और वो फिर उसके बाद ग्लाउस्टर जो है वो उस लेयर से मिलता है कोर्डेलिया के कैंप के पास, और लेयर को रेस्क्यू किया जाता है और कोर्डेलिया से रीयूनाइट होता है। सो और ग्लाउस्टर जो है अपने बेटे एडगर से मिल मिल चुका होता है दोबारा। सो यहाँ पे ये थोड़ी सी रियूनियन होती है, लेकिन दैट इज फॉर शॉर्ट लिव। फ्रेंच फोर्सेस के ऊपर ड्यूक ऑफ एल्बनी की जो आर्मी है जिसे एडमंड लेके आ रहा है इस बार, वो हमलावर हो चुकी है और वो हार जाते हैं फ्रांस वाले। लेयर और कोर्डेलिया को कैप्चर कर लिया जाता है। गोनरिल जो है वो जहर दे देती है रेगन को, सिर्फ एडमंड की वजह से, क्योंकि वो राइवलरी होती है उसकी वजह से दोनों की। एडगर जो कि एक रॉयल नाइट की शक्ल में एडमंड को चैलेंज देता है और उसे मार देता है। और गोनरिल जो है जब उसे पता लगता है कि जब एडमंड अपनी सारी गलतियां कबूल कर लेता है, वो अपना अफेयर भी कबूल कर लेता है गोनरिल के साथ, तो गोनरिल अपने आप को मार देती है। कोर्डेलिया जो है उसको बचाना मुश्किल होता है इस वक्त तक, क्योंकि शी इज लाइक उसके डेथ के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। और लेयर जो है इस चीज में, इसमें उसका दिल टूट जाता है इस देख के। और वो लाइक वो जब अपनी बेटी की लाश उठाता है, क्योंकि वो मर चुकी होती है, उसके बाद लेयर खुद मर जाता है और ड्यूक ऑफ एल्बनी और एडगर ये रह जाते हैं सल्तनत को देखने के लिए, और ये जो सिविल रिफ्ट्स होते हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए। सो दिस वाज स्टोरी which is also about somewhat revenge tragedy, in which we see that like it was a kind of domestic issue which was turned into political issue, and later on it claimed the life of all the major characters. Jealousy भी है इसके अंदर, lust भी है इसके अंदर, extra marital affair वो भी इसका थीम है, और इसमें like जो blindness भी एक थीम है, और wisdom led by blindness, that is also a theme in it. Yes, parallelism too. Okay, Rabbi Ghaffar, would you please explain this parallelism to the people? Okay, final from Shakespearean tragedies, Shakespearean dramas, we have The Merchant of Venice, जो कि एक ट्रेजेडी कॉमेडी है. So we will discuss this. So Merchant of Venice जो है, that is many times portrayed, depicted, and it is used in many stories, cartoons, and like इसकी बहुत सारी जो हैं पिक्चराइजेशंस मुख्तलिफ जगहों पे हो चुकी हैं. सो इसमें बेसिकली जो शाइल आर्क है उसका कैरेक्टर बड़ा मशहूर है, और ये जो इफ यू टर्न टुवर्ड्स योर चाइल्डहुड, तो आपने शायद इसकी बचपन में कहानियां भी पढ़ी हो जो कि आपके टाइम में आया करती थी. सो ही इज अ फेमस कैरेक्टर. Okay, ji. So, like Ms. Rabia says about parallelism, that on one side it is Lear and on the other side it is the same story of Gloucester. Yes, दोनों की story same चल रही है, very good. That यानी two stories are working in a parallel relation, जिसमें Gloucester और Lear इनकी यानी एक height of जो एक कह सकते हैं कि वो जो खुशहाली उन्होंने देखी, that was one part, and then they were betrayed by their own, and then they were killed by their own, or yes, or they were plotted against by their own people. So ये सारा कुछ इकट्ठा चल रहा था. yes, सब plots भी कह सकते हैं इसको. Okay जी. So tending towards now Merchant of Venice. So एक tragedy comedy. A Merchant of Venice जो है, that opens with Antonio. So Antonio is a Christian merchant, और वो एक बड़ी डिप्रेस स्टेट में है, और उसके जो तजारती काफिला बड़ा अरसा हो गया समुंदर में, वापस नहीं आया. मीनवाइल उसके फ्रेंड उसको चीयर अप करते हैं. इज नॉट लाइक बीइंग इज नॉट बीइंग हैप्पी. तो उसका जो फ्रेंड है बेसानियो, जो कि एक अरिस्टोक्रेट है, लेकिन फिलहाल वो अपने सारे पैसे खो चुका है, तो वो आता है एंटोनियो के पास कुछ मदद मांगने के लिए. अब एंटोनियो जो है उसके पास फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एंटोनियो कहता है मैं तुम्हें इनडायरेक्ट लोन दे सकता हूँ, और वो किस तरह होगा कि मैं
शायलॉक जो कि ज्यूश मनी लेंडर है, एक आउटसाइडर है बेसिकली, तो उसके पास जाऊंगा तो उससे तुम्हें लोन मिल जाएगा। सो उससे लोन लेता है, और लोन लोन जो है वो है 3000 डकेट्स, उस जमाने की करेंसी। सो एंटोनियो उसकी जगह पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। सो बेसिकली लोन जो है वो इनडायरेक्टली एंटोनियो ने लेके दिया। सो एंटोनियो जो है वो मेन कर्जई है इस वक्त शायलाक का। खैर, जो बसेनियो है, बसेनियो को पैसा मिल जाता है, और इसमें एक ट्विस्ट ये होता है कि इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट, यानी जो क्रिश्चियन मैन इंटरेस्ट होता है जो कि चार्ज करना होता है शायलाक ने, उसकी जगह वो कहता है कि मैं इसे वेव कर देता हूँ, लेकिन एंटोनियो को मुझे 1 पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, यानी अपने जिस्म का 1 पाउंड गोश्त देना पड़ेगा। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि इस तरह कौन होता है, या कौन इस तरह मांगता है यानी एक जिस्म का हिस्सा। ये वो उसे एक मजाक की बात समझ के टाल देता है। बसेनियो पैसे लेता है और उसके बाद पोर्शिया को विजिट करने जाता है। पोर्शिया एक बेल माउंट की एक वेल्दी हेयरस है, और अभी तक अनमैरिड है। 3 सूटर्स उसके पास जाएंगे, और यानी सूटर्स काफी जाएंगे, लेकिन 3 कैस्केट्स होते हैं बेसिकली। बेसिकली उसके फादर की शर्त है, एक गोल्डन, एक सिल्वर और एक लीड का बना हुआ। सो जो उनमें से कैस्केट खोलेगा, किसी एक कैस्केट में पोर्शिया की फोटो होगी, और जिसको वो फोटो मिल जाएगी पोर्ट्रेट, वो उससे शादी करेगा। खैर, जो पहला होता है फर्स्ट पर्सन हु गोज टू ट्राई हिज लक इज प्रिंस ऑफ मोरक्को, और वो कास्केट में गोल्ड को पिक करता है, और उसके अंदर इंस्क्रिप्शन होती है कि व्हाट एवरी मैन डिजायर, ये तो हर बंदा चाहता है। और उसमें पोर्शिया की पिक्चर की जगह वही स्कल होती है, जो कि गोल्ड हाइड्स करप्शन, इसको सिंबलाइज करती है। खैर, वो कसम खा लेता है कि इतनी जितनी मेरी जलालत होगी इन्हें शादी के पीछे, आज के बाद मैं कभी शादी नहीं करूंगा। वो निकल जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ एरागोन, जो कि आता है, वो सिल्वर को खोलता है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि विच एवरी मैन डिजर्व्स, और एक पिक्चर इडियट की किसी पिक्चर निकलती है अंदर से, जो कि ये शो कराता है कि दिस पर्सन प्रिंस ऑफ एरागोन इज एन इडियट। सो वो भी बड़ी इज्जत से जलील होकर वहां से निकल जाता है। वेनिस में क्या होता है पीछे, बैक इन वेनिस, सो जो जेसिका है, जो शायलॉक की डॉटर है, उसे प्यार हो जाता है लोरेंजो से। सो लोरेंजो इज अनदर कैरेक्टर। शायलॉक इज नॉट इंटरेस्टेड कि उसकी बेटी लोरेंजो से शादी करे या उसके साथ रहे। अब वो एक रात भागने का प्लान बनाते हैं। सो शायलॉक जो है वो बसेनियो के घर में इनविटेशन होता है उसके खाने का, तो बसेनियो भी इधर ही है। शायलॉक जो है वो लोरेंजो को वहां पे यानी आफ्टर ही लीव्स लोरेंजो गोज टू हिज हाउस विद हिज 2 फ्रेंड्स, और मीनवाइल जेसिका विंडो के सामने अपेयर होती है और एक चेस्ट फेंकती है जिसमें मनी एंड ज्यूल्स होते हैं, और वो फिर आती है मेन डोर से, और वो दोनों यानी वो और लोरेंजो उस पैसों को उठा के वहां से भाग जाते हैं। अब शायलॉक जब घर जाते हैं तो उसको पता लगता है उसकी बेटी भी चली गई और सब पैसा भी ले गई। वो एंटोनियो को ब्लेम करता है कि एंटोनियो में भी था जिसने हेल्प किया, कि उसे पता था कि मैं इधर खाने पे जा रहा हूँ, उसने इनके साथ प्लान बनाया, एंटोनियो मेरे अगेंस्ट है। और इस टाइम पे रूमर्स होती हैं कि वेनिस में कि मेनी शिप्स ऑफ एंटोनियो जो कि आ रहे थे, वो या तो डूब चुके हैं या गायब हो गए। अब एंटोनियो और परेशान हो जाता है। शायला को पता है कि अब ये पैसे देने के काबिल नहीं रहा, तो वो ये कहता है कि मैंने इससे इसके वो जो पाउंड फ्लैश था मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसको यही होता है कि मेरी बेइज्जती हुई इसकी वजह से, मेरी बेटी इसकी वजह से भागी और मैंने वो इंतकाम लेना है। अब वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसका पाउंड फ्लैश जो तय हुआ था वो चाहिए। बेसेनियो जो है वो बेल माउंट पहुंचता है पोर्शिया से मिलने के लिए, और वो उसको याद उसे याद होती है, वो होता है वो कि किस जमाने में डैशिंग सोल्जर था, उससे ऑलरेडी उससे मोहब्बत हुई हुई थी। पोर्शिया जो है वो वही वाला कैस्केट खोलता है जिसमें उसकी पोर्ट्रेट होती है, और वो उससे यानी तय हो जाता है कि इसकी शादी इससे होगी। उसे एक रिंग देती है कि ये रिंग संभाल के रखना, और ये उनकी एंगेजमेंट का सिंबल है। मीनवाइल बेसेनियो को लेटर आता है कि पीछे क्या मसला हो चुका है, और वहां पे वो अपनी जगह पे वापस जाता है। और जो है ये पोर्शिया पोर्शियो ये उसे पैसे देती है कि ये पोर्शिया पैसे देती है, सॉरी, कि मदद की जाए उसकी। लेकिन वहां पे जाके पता लगता है कि शायलाक जो है वो पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है।
वो एंटोनियो को अरेस्ट करा देता है और कहता है कि मैं इससे बदला लूंगा जो कि हमारा तय हुआ था, और वो लेटर ड्यूक के सामने लिखता है जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। ड्यूक कहता है कि कोई डॉक्टर ऑफ लॉ आए ताकि वो आके इसका केस लड़े। मीनवाइल क्या होता है कि नर्सिया जो कि एक स्मॉल कैरेक्टर है, प्लस पोशिया, ये दोनों जब बेसिनियो वापस आता है एंटोनियो के लिए, तो ये उसके पीछे पीछे वापस आ जाती हैं डिस्गाइज में मेल बन के। सो वहां पे पोशिया जो है अपने आप को एक लॉ का एक डॉक्टर यानी एक वकील अपने आप को बैरिस्टर शो करती है बैल्सर के नाम से, और वो कहती है कि उसने केस पढ़ा है और वो इसके केस को लड़ेगी। खैर जब वो देखते हैं कि पैसे देने की बारी है, तो बेसिनियो कहता है शायलाक को कि मैं तुम्हें 3 की जगह 6,000 डॉकेट्स देता हूँ, जिसको वो लेने से इनकार कर देता है। कहता है बात तय हुई थी सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश की, तो मैं इसके सीने से निकलवा के रहूंगा। ओके, होशिया जो है वो देखती है और वो लेटर पढ़ के कहती है कि ठीक है, इसमें तो कोई लूप होल नहीं है, और वाकई ऐसा कि इसको अपना 1 पाउंड फ्लैश देना पड़ेगा। लेकिन शी इज इंटेलिजेंट इनफ, इसकी जो ट्रेजाई कॉमेडीज के कैरेक्टर्स में विमेन स्ट्रांग होती हैं, ट्रेजेडी में वीक होती हैं, कॉमेडी में और स्ट्रांग होती हैं। सो ये बड़ी इंटेलिजेंट खातून है पोशिया। वो कहती है कि ठीक है, 1 पाउंड फ्लैश लेना है, ले लो, लेकिन उसके बाद अगर 1 कतरा भी खून का ज्यादा निकला 1 पाउंड से, तो फिर क्या होगा? फिर वेनिस के लॉ के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन होगा, इसकी डेथ होगी, यानी शायलाक की, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो सारी वेनिस में डिक्लेयर होगी, वेनिस वालों को दी जाएगी। शायलाक जो है वो इस लॉ को नहीं समझ सकता, यानी वो कहता है कि जारी बात है पूरा 1 पाउंड फ्लैश कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि ना ज्यादा ना कम। सो पोर्शिया उसको पढ़ती है, कहती है कि शायलाक मस्ट एग्जैक्टली टेक 1 पाउंड फ्लैश, नो मोर और नो लेस, और ही विल वायलेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड डाई, कि अगर उसने कम या ज्यादा निकाला 1 पाउंड से तो वो मरेगा। शायला कहता जी मुझे पैसे, मुझे नहीं चाहिए फ्लैश, मुझे पैसे दो, मैं साइड पे हूँ। वो कहती है नहीं भाई, अब तुमने पहले कह दिया ऑलरेडी कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, और हम तुम्हें गोश्त दे रहे हैं, तुम ले लो। तो उसके बाद वो कहता चलो मैं इससे भी रिजाइन करता हूँ, मुझे ना गोश्त चाहिए ना पैसे चाहिए। वो कहती है 1 मिनट ठहर जाओ। वो कहती है कि अब एक लॉ है जिसमें जो वेनिशियन सिटीजन, उसके ऊपर अगर कोई फॉरेनर उसकी लाइफ के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो वो अपनी हाफ वेल्थ जो है या उस बंदे को देगा जिसके खिलाफ उसने कॉन्स्पिरेसी की, और हाफ वेल्थ स्टेट को जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली ओडियो को पावर मिल जाएगी कि वो उसकी डेथ भी अनाउंस कर सकता है। अब शायलॉक जो है वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो उसकी हर चीज लुट गई है। सो ड्यूक उसको किसी हद तक माफ कर देता है, और एंटोनियो जो है वो कोर्ट को कह देता है कि इसका पैसा इसको वापस कर दिया जाए, और ये तय पाता है कि इसके मरने के बाद वो सारा पैसा लोरेंजो और उसकी बेटी जेसिका को जाएगा। सो जो है ये हार जाता है अपनी जगह पे शायलॉक, और ही रिजाइंस। बसैनी जो वो डॉक्टर बाल्सर को शुक्रिया अदा करता है, नॉट नोइंग कि ये पोर्शिया है डिस्गाइज में। तो पोर्शिया उसे कहती है कि भाई कोई पैसे पूछे, मैं वकील हूँ तुम्हारी। तो वो उसके पास सिर्फ रिंग होती है देने को, वो उसे रिंग दे देता है। बड़ा अपसेट होता है कि मैंने अपनी मोहब्बत की निशानी दे दी। खैर इसके बाद वापस जब जाता है तो वहां पे उसको होशिया मिलती है, और वो जब उससे रिंग का पूछती है तो वो उसके पास कुछ भी जवाब नहीं होता। तो एंटोनियो से कहता है कि चलो इसने मेरी दोस्ती में मुझे बचाने के लिए इस तरह किया। तो वो रिंग निकाल के उसको दिखा देती है, एंड शी सेज कि वही बाल्सर थी, वही वकील बन के आई। और उसके बाद फिर लोरेंजो और जेसिका, और उसमें ग्रेजिनो और नेरिसा, ये माइनर कैरेक्टर्स से, और पोर्शिया और बसिनो की शादी हो जाती है। सो दिस इज हाउ द प्ले एंड्स। सो इसमें ग्रीड जो है, रिलीजन, ये इसके मेजर सिंबल्स थीम्स हैं, क्योंकि जो है शायलाक ही वाज like Jew, and rest of the people they're shown as Christian. So this was the end of Shakespeare. And now switching to linguistics, and we have morphology here. Morphology and syntax, ये इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ये detailed, इसको थोड़ा सा analysis चाहिए. So let me share the slide of
morphology and syntax. ट्रेजेडी कॉमेडी और ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आया था। तो ट्रेजेडी कॉमेडी बेसिकली वो होती है जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, यानी देयर इज अ ट्रेजेडी इन दैट, लेकिन इसकी एंडिंग जो होती है दैट इज बेसिकली विद लाइक देयर इज हैप्पी एंडिंग विद इट, सो इट एंड्स हैप्पीली फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, नॉट फॉर ऑल बट फॉर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। और लेकिन इसके अंदर ट्रेजेडी के थोड़े बहुत इफेक्ट्स, यानी थोड़ा बहुत अफसोस दुख भी इसके अंदर शामिल होता है, ऐसी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। ओके जी, ना मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। सो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स कैसे बनते हैं और उनका क्या रिलेशनशिप है दूसरे वर्ड्स के साथ। और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं। सो मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, के अल्फाज कैसे वजूद में आते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है मॉर्फीम का, दिस इज सिमिलर टू फनीम, जिसका फनीम एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है, सिमिलरली मॉर्फीम भी एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। अब हमारे पास बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं सच एज टॉक, टॉकर, टॉक्ड, टॉकिंग। इनको अगर गौर से देखा जाए तो इनका बेसिक एलिमेंट एक ही है, दैट इज टॉक। टॉक से टॉक्स बना, टॉक से टॉकर बना, टॉक से टॉक बना, टॉक से टॉकिंग बना। और इसमें बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर चेंज ला रहे हैं टॉक में, जैसे एस, ई आर, ई डी, आई एन जी। ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स मोर्फीम्स कहलाते हैं। अब मोर्फीम की डेफिनेशन क्या है? अ मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग, ये मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट वो मोर्फीम होता है। मजीद डेफिनेशन इसकी क्या है? अ मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट और ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी सबसे छोटे से छोटा एक यूनिट जो कि मीनिंगफुल हो या ग्रामेटिकल फंक्शन हो उसका। फॉर एग्जांपल वॉक को अगर उसकी चेंज करके ई आर लगाया जाए तो वॉकर बनता है। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ई आर का तो कोई मीनिंग नहीं है, हम कह रहे हैं मीनिंगफुल यूनिट, लेकिन ई आर का कोई मीनिंग नहीं है। यहां मीनिंग से मुराद है कि जब ई आर लगा वॉक के साथ तो एक नया मीनिंग हमारे सामने आ गया, इन अनदर वे नया लेक्सिकल आइटम हमारे सामने आ गया। वॉक जो है वो नाउन है, वॉकर नाउन भी है। वॉकर यानी एक बंदा जो वॉक कर रहा है, और वॉकर जिसके अंदर हम बच्चे को लेके जा रहे हैं। अब ये दोनों चीजें डिफरेंट मीनिंग्स रखती हैं। वॉक वॉक करना, वॉकर वॉक कराने वाला ऑब्जेक्ट। एक बंदा जो वॉक करे उसे भी वॉकर कहते हैं। सो ये एक, यानी हमने ई आर लगाया तो मीनिंग चेंज हो गया। और कई दफा जो कई मॉर्फीम्स ग्रामेटिकल फंक्शन करते हैं, यानी वॉक के साथ आप एस लगा देंगे तो ये ग्रामेटिकल फंक्शन है कि ये आपको बता रहा है कि ये इंडेफिनिट है। ईडी लगाएंगे तो वो बताएगा ये पास्ट टेंस है। उसके मेन मीनिंग में फर्क नहीं पड़ा, फर्क उस सूरत में वो चलने की मेन बात चलना ही है, लेकिन उसका पास्ट टेंस यूज हो गया, प्रेजेंट टेंस यूज हो गया। लेकिन जब मीनिंग की बात करते हैं तो ई डी ई आर लगाने से, वॉक के साथ ई आर लगा, that makes it walker. So walker is something different and walk is something different. ये भी आपको क्लियर होता है आगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मॉर्फ। सो जिस तरह मॉर्फीम एंड फनीम ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है, इसी तरह फोन और मॉर्फ ये फिजिकल यूनिट्स हैं। ये यानी वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं। मसलन अब आपके माइंड में कैट्स जो वर्ड है, CAT प्लस S, जो कि उसके प्लूरल का इजाफा कर रहा है, इनके हमारे पास दो मॉर्फीम्स हैं, कैट प्लस S। जब हम उन्हें लिखेंगे भी, ये मैं आपके सामने इसको लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल CAT प्लस S, अब ये क्या हो रहा है? ये कैट प्लस S, ये दो मॉर्फीम्स बन रहे हैं, ठीक है। या TALK प्लस ER, ये दो मॉर्फीम है। दो मॉर्फीम है जो हमारे माइंड में है, और एट द सेम टाइम ये मॉर्फ्स भी दो हैं, जिससे आपको साफ नजर आ रहा है। कैट इज वन मॉर्फीम, एस इज अनदर मॉर्फीम। टॉक इज वन मॉर्फीम, ER मिला के दैट इज अनदर मॉर्फीम। तो दो मॉर्फीम्स हैं और एक मॉर्फ है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड शीप, शीप क्या है? शीप इज सिंगुलर, शीप इज प्लूरल। तो जब हम शीप की बात करेंगे एज अ प्लूरल,
कि मैं कह रहा हूं कि आई हैव मैनी शीप या आई सोल्ड सम शीप, तो उस सूरत में चूंकि मैं प्लूरल यूज कर रहा हूं, मेरे माइंड में इस वक्त दो मॉर्फीम्स हैं और लिखने में एक मॉर्फ है। शीप प्लूरल भी होगा तो मैं शीप ही लिखूंगा, बोलूंगा लिखूंगा शीप ही, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि मैं माइंड में सोच रहा हूं कि मैं प्लूरल की बात कर रहा हूं, तो शीप प्लस जीरो मॉर्फीम, दैट इज एस, जीरो मॉर्फीम एस, यानी एस स्टैंड्स, यानी एस जो मेरे माइंड में है कि मैं शीप को एज अ प्लूरल ले रहा हूं। तो ऐसी सूरत में हम जिन वर्ड मतलब फिश हो गया, शीप हो गया, हेयर हो गया, जिनको हम फिशेस, हेयर्स या शीप्स नहीं कह सकते, लेकिन बोलते में हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं प्लूरल की, तो हम माइंड में एक मोफीम वो वाला वर्ड और उसके साथ एक जीरो मोफीम रख लेते हैं, जो कि बोलने में सामने नहीं आता लेकिन हमारी उस मेंटल एबिलिटी में वो मौजूद है। इसमें अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे सेपरेटली यू कैन आस्क मी, नो इशू फॉर दैट आफ्टर द क्लास। फिर जिस तरह एलोफोन है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है एलोमॉर्फ का। एलोमॉर्फ इज फिजिकल वेरिएंट, इज इट इज अ वेरिएंट ऑफ अ फोन, एलोफोन जो है। इसी तरह एलोमॉर्फ एक वेरिएंट है मॉर्फ का। तो जिस तरह मॉर्फीम फोनीम की तरह है, मॉर्फ फोन की तरह है, एलोमॉर्फ एलोफोन की तरह है। अब थ इज एलोफोन ऑफ ट, थ ट, ठीक है, क ख, ये एक दूसरे के एलोफोन्स। अब प्लूरल एंडिंग्स में क्या होता है कि कैट के साथ आपने एस लगाया तो आपको साउंड आई एंड में, कैट्स। आपने शीप के साथ कुछ भी नहीं लगाया, आपने डॉग के साथ एस लगाया, डॉग्स, ज साउंड आई। तो वो जो सा है और ज एंडिंग जो प्लूरल हैं, ये एक दूसरे के एलोमॉर्फ्स हैं। ये प्लूरल एंडिंग्स में ही होता है, जिसको आप प्लूरल एंडिंग में लेके आते हैं तो वो इनकी प्लूरल एंडिंग्स डिफरेंट हैं। एक पे स की साउंड आ रही है, मतलब कार्स, बसेस, ज, कार्स सा साउंड, बसेस जा साउंड, कैट सा साउंड और डॉग्स ज साउंड। तो ये ज साउंड सा साउंड का एलोमॉर्फ कहलाता है। अब हमारे पास होते हैं फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स कौन से होते हैं? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, फ्री मॉर्फीम्स वो हैं जो कि अकेले स्टैंड करते हैं, जिनकी अकेले कोई वैल्यू है, जो अकेले मीनिंगफुल है। मसलन नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जिसमें हमारे पास आ सकता है चेयर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें। ये आप कोई भी नाउन उठा लें, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी ये वर्ब, ये सारे के सारे हमारे पास फ्री मॉर्फीम्स में आ रहे हैं। अब फ्री मॉर्फीम्स के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं। सो फ्री मॉर्फीम्स बेसिकली वो चीजें हैं जो कि अकेले खड़े हो सकते हैं। बाउंड मॉर्फीम्स वो हैं जो कि अकेले खड़े नहीं हो सकते। मसलन जिनको खड़े होने के लिए या जिनको मीनिंगफुल होने के लिए अपने साथ किसी वर्ड के मिलना जरूरी है, कोई स्टेम या कोई रूट वर्ड उनके साथ मिलेगा तो वो मीनिंगफुल होंगे। ई आर का अपनी कोई मतलब नहीं है, लेकिन टॉक के साथ मिलके वो टॉकर बन जाता है। सो ई आर अकेला नहीं स्टैंड कर सकता, लेकिन टॉक अकेला स्टैंड कर सकता है। सो टॉक जो है वो फ्री मॉर्फीम है, दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। बाउंड मॉर्फीम्स कौन से हैं? जो कि अकेले मीनिंगफुल नहीं होते। अब फ्री मॉर्फीम में हमारे पास होते हैं लेक्सिकल एंड फंक्शनल। सो इसमें लेक्सिकल कौन से हैं? जिनको हम कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास वो सारे वर्ड्स हैं जिनको हम ओपन क्लास वर्ड्स कह सकते हैं। मसलन मैन, डॉग, हाउस, येलो, सिंसियर, ओपन, लुक, फॉलो, ब्रेक। इनके साथ हम नए लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो हैं ऐड भी कर सकते हैं और इनके साथ हम बाउंड मॉर्फीम भी ऐड कर सकते हैं, यानी वर्ड्स आगे मजीद वर्ड्स को जन्म दे सकते हैं। येलो को येलोइश कर दें, सिंसियर को सिंसियरली कर दें, ओपन को ओपननेस कर दें, लुक को लुकिंग कर दें, फॉलो को फॉलोअर कर दें। सो इन वर्ड्स के अंदर गुंजाइश है मजीद वर्ड्स को एक्सेप्ट करने की या जन्म देने की। So these are lexical words which can stand on its own, on their own, and they're content words. They are also called open class words. फिर फ्री मॉर्फीम में हमारे पास एक और टाइप है फंक्शनल मॉर्फीम्स। ये वो हैं, दे ऑल्सो स्टैंड ऑन देयर ओन, ये अकेले स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन दे आर कॉल्ड क्लोज्ड क्लास, जिसमें हमारे पास कंजंक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस।
आपके पास नाउन्स भी बनते रहते हैं एक नई लैंग्वेज में, एडजेक्टिव्स भी बनते रहते हैं और वर्ब्स भी बनते रहते हैं। लेकिन आपके पास कंजंक्शंस जितने इंग्लिश में बनने थे बन गए, जितनी प्रीपोजिशंस बननी थी बन गई, तीनों आर्टिकल्स बन चुके हैं और प्रोनाउंस जितने होने थे हो गए। मजीद ये नहीं बन सकते। मसलन अब इनके अंदर मजीद डेवलपमेंट नहीं होगी। आप ये भी नहीं कर सकते फॉर को फॉर्स कर दें, टूज को टूज कर दें, फ्रॉम्स को फ्रॉम्ड कर दें। नो, देयर कैन नॉट बी एनी चेंज लाइक विच इज पॉसिबल इन दीज थिंग्स। अब ये चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। चेंज इज ओनली पॉसिबल इन लेक्सिकल मॉर्फीम्स, जिनके अंदर से मजीद वर्ड्स निकल सकते हैं। सो ये जो वर्ड्स होते हैं फंक्शनल मॉर्फीम्स, जो कि फ्री मॉर्फीम की एक कैटेगरी है, इनको हम क्लोज टाइप कहते हैं। फ्री क्यों है? क्योंकि इन प्रेपोजिशन का अपना मीनिंग है, ठीक है, दे का अपना मीनिंग है, देयर का अपना मीनिंग है, वो अकेले मीनिंगफुल हैं, लेकिन ये फर्दर किसी वर्ड को आगे जन्म नहीं देते। ओके, गोइंग फर्दर वी हैव डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। तो डेरिवेशनल क्या होते हैं? जहां से हम डिराइव कर सकते हैं, अखज कर सकते हैं। मतलब मैं कोई एक बंदा बात करता तो मैं कहता हूँ तुम्हारी बात से मैंने ये बात अखज की, ये तुम्हारी बात से मैंने ये पॉइंट अखज किया, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बात उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिससे मैंने कोई पॉइंट जो है ना अखज किया, डिराइव किया। वर्ड एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम कोई ना कोई चीज डिराइव करते हैं। सो ये दोनों जो है बाउंड मॉर्फीम की टाइप्स हैं। अब एक टाइप है डेरिवेशनल, जिसमें हम किसी वर्ड के साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा के एक नया वर्ड बना लेते हैं। पॉसिबल के शुरू में इम लगा दें, इम्पॉसिबल, एंड में IT लगा दें, इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। फेथफुल से पहले अन लगा दें, आगे LY लगा दें, अनफेथफुली। सो बीच वाला जो वर्ड होता है वो स्टेम या रूट का एक तरह से रूट वर्ड या स्टेम वर्ड बन जाता है, और उसके साथ हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेशनल प्रोसेस। इस तरह मिसकॉन्सेप्शन के साथ मिस लगा दें, अंडरस्टैंडिंग के साथ मिस लगा दें, कॉपी के साथ, कॉपीराइट के साथ एबल लगा दें, शुरू में अन लगा दें, अनकॉपीराइटेबल। तो ये आपने क्या किया? आपने प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाए, तो बीच वाले वर्ड से अपने मजीद वर्ड्स डिराइव किए। इन्फ्लेक्शनल क्या होते हैं? कि जिसमें आप वर्ड क्लास को चेंज नहीं करते, आप वर्ड क्लास को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप बेसिकली एक ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज कर रहे हो। जिस तरह वॉक के साथ आपने S लगाया, वॉक्स, ED लगाया, उससे बेसिक जो वर्ब है वो वही है। मतलब वॉक के साथ अगर हम ER लगाते हैं तो वॉकर एक डिफरेंट नाउन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे वॉक्ड और वॉक्ड जो है वो दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। वॉकिंग भी वही मीनिंग दे रहा है जो कि वॉक का मीनिंग है, इसके अंदर चेंज नहीं है। तो ये इन्फ्लेक्शंस होते हैं जिसमें हम S या ED यूज कर लेते हैं, जिससे सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज होता है, उसका लेक्सिकल फंक्शन चेंज नहीं होता। सो इसको इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहते हैं। फिर हमारे पास है सिंटैक्स। सो सिंटैक्स क्या? दैट इज स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के हाउ सेंटेंस इज मेड, और ये सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर के ऊपर भी बात करता है। लिंग्विस्टिक्स में आपको जितनी भी की टर्म्स हैं, जिसमें मेन etymology is a process in basically question है कि morphology और etymology are same, that is a process in morphology, वो उसका एक प्रोसेस है। अब ये जो हमारे पास है बेसिकली, ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपने टर्म्स पढ़े लिंग्विस्टिक्स के अंदर, फिर लिंग्विस्टिक्स की सब फील्ड्स हैं, इन सारी फील्ड्स के अंदर यू नीड टू बी मेकिंग श्योर कि ये इनके ऊपर जो डेफिनेशंस है वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक MCQ आ सकता है कि semantics says each one A B C D, so you should be able to know कि what is the basically what is exactly semantics from all these things। आपने उस चीज को वहां से मेक श्योर करना है, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन इन चीजों की आनी चाहिए, सिंटैक्स की आनी चाहिए, सेमेंटिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये सारी, और इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते भी आ रहे हैं, फोन, फोनीम, एलोफोन, मॉर्फ, एलोमॉर्फ, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी। सो ये चीजें इनकी डेफिनेशंस के साथ आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एक ये दो सेंटेंसेस देखें, चार्ली ब्रोक द विंडो, द विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली। अब ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से देखें तो एक एक्टिव सेंटेंस है और एक पैसिव।
चार्ली ने खिड़की तोड़ी, खिड़की चार्ली से टूट गई। अब इनके दरमियान जो सिंटैक्टिक डिफरेंस है वो क्या है? वो है सरफेस स्ट्रक्चर का। इसके दो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनकी डेप्थ में एक ही डीप स्ट्रक्चर है जो चल रहा है। डीप स्ट्रक्चर क्या है कि खिड़की जो है वो टूट गई है, चार्ली ने खिड़की तोड़ दी। अब आप इसके बेशुमार सरफेस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। चार्ली ने खिड़की तोड़ दी, ये खिड़की चार्ली से टूट गई, ये वो खिड़की है जो चार्ली ने तोड़ी, ये वो चार्ली है जिसने खिड़की को तोड़ा। यानी ये खिड़की चार्ली से टूट चुकी है, चार्ली इस खिड़की को तोड़ चुका है, ये वही चार्ली है जो खिड़की को तोड़ चुका है, ये वही खिड़की है जो चार्ली से टूट चुकी है। जो मर्जी उसमें आप टेंस यूज कर लें। बेसिकली इसका डीप स्ट्रक्चर क्या है कि ये खिड़की चार्ली से टूटी, या चार्ली ने ये खिड़की तोड़ी, ये खिड़की थी जिसको चार्ली ने तोड़ दिया। अब उसके आपने सरफेस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट बना दिए। सो बेसिकली दो लेवल पे काम चलता है, एक होता है सरफेस स्ट्रक्चर, एक होता है डीप स्ट्रक्चर। इसको बताने का इंपॉर्टेंस क्या है कि एक जगह पे हम ये देखते हैं, ये ट्री डायग्राम्स जो कि आपके इस में तो नहीं आएंगी बिल्कुल, जो आपका इंपॉर्टेंट पीपीएससी का जो पेपर है, लेकिन इसका यह कि जिस आप ये देख रहे हैं एक सेंटेंस जिसमें से नाउन और वर्ब फ्रेज अलग हो गई, फिर उसमें से आर्टिकल एंड नाउन, यानी द गर्ल और द डिटर्मिनर और आर्टिकल बन गया, गर्ल नाउन बन गया। वर्ब फ्रेज में से वर्ब सॉ, नाउन फ्रेज में से मजीद आर्टिकल निकला और उसके साथ डॉग नाउन निकल आया। अब ये है ट्री डायग्राम ऑफ अ सिंपल सेंटेंस जो कि दैट इज अबाउट अ सेंटेंस, द गर्ल सॉ अ डॉग। सो ये बेसिकली क्या है कि ये आपका एक सिंपल सेंटेंस जिसको आपने एक ट्री डायग्राम से शो कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ चार्ली ब्रोक द विंडो। तो ये जो है हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर, ये एक फिजिकल एंटिटी है। जो डीप स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब मैं अगर इसका सरफेस स्ट्रक्चर बनाता हूं कि चार्ली ब्रोक द विंडो, उसका ट्री डायग्राम और होगी, विंडो इज ब्रोकन बाय चार्ली, उसकी ट्री डायग्राम होगी, दिस इज द विंडो दैट इज ब्रोकन बाय चार्ली, उसकी ट्री डायग्राम हो रहा है, या दिस इज द सेम विंडो दैट इज ब्रोकन बाय चार्ली, या दिस इज द सेम पर्सन चार्ली हु हैज ब्रोकन द विंडो। तो अपरेंट स्ट्रक्चर्स या सरफेस स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ होंगे, उनके ये जो ट्रीज हैं ये भी डिफरेंट बनेंगे, लेकिन इनकी बेस पे, इनकी बैक पे एक ही फिलॉसफी चल रही है जो कि इसका एक सेंट्रल आइडिया है, जो कि इसका डीप स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास होती है स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट डीप स्ट्रक्चर्स हैं। अब एक डीप स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनी हैड एन अम्ब्रेला एंड शी बम्प्ड इनटू अ मैन, और दूसरा आइडिया है कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन एंड ही वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला। अब इनका सरफेस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला। अब यहां से स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी बनेगी कि विच स्ट्रक्चर आई एम रेफरिंग टू। मैं कहता हूं कि अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब इसकी बेस पे मे बी मैं ये मेरे बेस माइंड में ये यानी डीप स्ट्रक्चर दो हो सकते हैं। एक तो ये है जो मैं कहना चाह रहा हूं इस फिक्रे के जरिए, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, या एक ही हो सकता है कि अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। दोनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसी तरह यहां पे दो पीछे डीप स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन हु वाज कैरिंग अम्ब्रेला, और एनी वाज कैरिंग अम्ब्रेला एंड शी बम्प्ड इनटू अ मैन। तो इन दोनों का जो सरफेस स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद अम्ब्रेला। डीप स्ट्रक्चर की क्लैरिटी ना होने की वजह से सरफेस स्ट्रक्चर कई दफा हमें क्लियर नहीं मिलता। So only saying this, not knowing the deep structure, can he bumped into a man with an umbrella, that is not making any clarity. So these are three diagrams which are important in a way. These are some different ways to attempt these three diagrams, but they are not included in your syllabus. So syntax में इससे ज़्यादा important नहीं है कि उसमें basically आपकी grammar है, आपके parts of speech, they are sometimes included, and then ये surface structure and deep structure, which is part of it. So now I would request Ms. Naseem. She is
willing to contribute to some literary work. So if you are there, you can continue, please. Assalamu alaikum, everyone. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, today we are going to discuss an important play of Christopher Marlowe, The Jew of Malta. This is very much famous play written in 1589 to 90s, and it was performed in 1590s, and it is a type of revenge tragedy, and its setting is in Malta, an island. So, before going into the details and the summary of the play, we have to discuss the characters which are very much important. Hello, and this is sorry for interruption. And No issue. This is story of every house. You can continue. okay, the very much important character is Barabbas and his daughter Abigail, and after that, there is a governor of Malta, Furnace, and these are some important characters. And while going into the summary of the play, we will discuss other characters which are important. So, let's start the play. This play starts on an island named Malta, which is situated in Mediterranean Sea. The son of Turkey, Sultan Kalamat, comes to Malta for tax recovery, I mean to say revenue collection, which has been pending for the last 10 years. Farnese is the governor of Malta who promises to pay revenue within a couple of weeks. Afterwards, he thinks the way he could collect revenue. He decides to collect revenue from Jews of Malta only, and all the Jews residing in Malta will have to pay their half of the property or estate for the payment of revenue. Among those Jews, there is a Barabbas who is highly rich and protests against this decision. He says, "You cannot do this with the Jews only." Because of this protest, his whole property is seized. Now because he set out three rules for the collection of revenue, that Jews will have to pay half of their estate, and if any one of the Jews is not willing to pay in their estate, he will have to accept Christianity, and if he refuses to accept Christianity, he will have to pay the whole of the estate, the whole of the property. Now he becomes the Barabbas is very much reluctant in this way. He says, "You cannot do this with Jews." Because of this protest, his whole property is seized. Now he becomes bankrupt. He decides to take revenge. For this revenge, he uses his beautiful daughter Abigail, who becomes a nun because of the planning of his father to regain his property from Governor Furnace. So for this, she becomes a nun and recovers his father's money within a night. She smuggles the whole property of his father in the convent. Now, one aim of Barabbas is completed. The second one is to take personal revenge from Governor Furnace. Now, Lodovic, who is the son of Governor of Malta, Furnace, falls in love with Abigail. He has listened a lot about Abigail from his friend Matthias, who is also in love with Abigail. So there are two suitors of Abigail. One is Lodovic and the second is Matthias. Barabbas thinks it best to take revenge. He suggests Lodovic to win his daughter's heart. Uh, Marlin Del Bosco comes to governor and says that to refuse to pay revenue to Turkey
and our sultan will help you. He suggests him not to pay revenue to Turkey, and he says that our king will help you in this strife. He sells some of his slaves to Governor Farnese. Barabbas purchases a slave from the market. His name is Ethamo. He buys a slave named Ethamo. Here Barabbas meets again two boys, Lodovic and Matthias, who are in love with Abigail, his daughter. He promised both of them to marry his daughter with named Abigail. But actually, he plans against both of these boys, and he does not want to let his daughter to marry any one of these boys. He sends fake letters to both the boys by Ithamar. They die in a duel, but this was wrong because her daughter Abigail was in love with Matthias. She does not like this plan of his father, and when she comes to know the planning and treachery of her father, she actually becomes nun and accepts Christianity. And in the beginning of the play, there was a statement by Barabbas that the worst thing to accept Christianity. And when his daughter accepts Christianity and becomes a nun, actually, he feels very much sorry for this. But despite having this of his fault, he uh, he wants to have you can say he wants to revenge from his daughter even. And Barabbas now feels frightened because his daughter has become a nun in reality, and she will expose his secret. Actually, this is the reason that he plans to kill his daughter also, and other nuns of the convent and monastery. And he sends a porridge, poison porridge, and he says that this porridge must be given to his daughter also and the other nuns. And while dying, Abigail gives a letter to a friar in which the whole secret is expressed, revealing the guilt of his father. After funeral procession, it is decided to ask some questions from Barabbas, and that why he has done so. Meanwhile, the Turk attack again Malta. The friars tell him that his daughter has expressed all his guilt to them. After this, Barabbas says that he is repentant and now he wants to become a Christian, Jewish person. And it means that he is not willing to accept and convert into Christian. Rather, he wants to give them treachery as well, and he wants to beguile them, and he wants to give a dodge to them. And in whose convent he will accept Christianity, he gives them decision that both of them are friars, but he will give the whole of his property estate to that friar in whose convent and monastery he will accept Christianity. He will donate all his property to that convent and monastery. Both the friars start quarreling with each other. So this is also part of his deceitfulness nature, that he again here dodge them, and the both are in quarrel with one another. You can understand how cunning he is. Here, Ethelmer comes and kills one of the friars, and the other is in his guilt that he has killed the other person. Barabbas is free from all those who come on his way, but there is only one person, Ithamar, who knows uh, everything and every planning which he made to kill the different characters in the play. And Ithamar is in love with Belamira, a prostitute. Ithamar tells everything about his master to Belamira and start blackmailing his master for gold. To get from Ithamar, he forms a shape of a French musician and comes to Belamira's home and gives a poisoned flower to them all, and goes from there. They do not die, rather, Ithamor and Balamira both go to the Governor Furnace
After exposing truth to Furnace, they both die. Finally, Barabbas is arrested. In order to avoid penalty, he takes some drug and exposes to be dead. They all think he is to be him to be dead. They all think him to be dead, and now they throw him away from the city for the dogs and the witches, etc. Now he wakes, and in order to take revenge, he meets with Turks and leads them to Malta. And then and the Turks, becoming happy with with him, appoint him governor of Turk army. After becoming governor, he even then is not satisfied. And you can say, oh, there is a Indian movie in which Salman Khan is having a kick. So after dodging all the characters in the play, he is not receiving his kick. So he again makes another plot against the governor. Satisfied and thinks that he has beguiled his city Malta, and he is frightened as well. He thinks to go back to the governor of Malta and say that he will save the city from the Turks' attack. For this gives money. For this give him money. He beguiled Turks as well as the other characters and comes back to Malta. At this moment, governor becomes his opponent because he knows his tricks, but this time he is a good person and really wants to save the city of Malta, but no one is ready to have faith in him. This time he really wants to support the governor. He has planned to kill Kalamat, in which himself dies. Kalamat is jailed, and finally, Governor Furnace promises the Malta masses for their security. After getting inspiration from this play, Shakespeare wrote his Merchant of Venice. So this is all from Christopher Marlowe. And if anyone has question about this, please